السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے، اب بھی انڈیا مسلمان میں، پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، دونوں کے بچے پڑھتے تھے، تو مسلمان کی بچی اور ہندوؤں کی بچی اکٹھی پڑھتی تھی۔ تو مسلمانوں کی بچی اسے دین کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی جو گھر سے سنتی تھی۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد، فضائل، کمالات، برکات، یہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ سنتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان دین کی طرف، شریعت کی طرف، کملی والے کی غلامی کی طرف ہونے لگا اس ہندو بچی کا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گئی۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئی، اس نے اپنے اسلام کو چھپایا۔ یہ جو ایمان کی خوشبو ہے، یہ آخر کار پھوٹتی ہے، اور گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ اب گھر والوں نے بہت سمجھایا، بہت اس کو بھٹکایا، بہت روکا، لیکن وہ نہ روکی، نہ سمجھی، اور اس نے کوئی توجہ نہ کی اور کوئی دھیان نہ کیا۔ اس کا اسلام پکا، اس کا ایمان پکا، اس کا دین مضبوط، اس کا یقین مضبوط۔ آخر کار گھر والوں نے کہا کہ اس کو کوئی بہانہ بنا کے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ماں نے ایک بہانہ بنایا، اپنی انگوٹھی ایسی اتاری، ایسے اتار کے کہا کہ بیٹی یہ لے انگوٹھی، اور اس انگوٹھی کو جا کے نا اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اور دیکھو میں پھر یہ آپ سے لے لوں گی، اور مہنگی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اگر تو نے اس کو گم کر دیا میں تجھے مار ڈالوں گی۔ اس نے کہا ماں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی لے لی۔ اس نے نا گھر کی کسی الماری کی کسی اوپر کے کمروں میں، اوپر برتن میں کہیں چھپا کے نا انگوٹھی رکھ دی۔ ماں دروازے سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہاں رکھی ہے، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگوٹھی رکھی کہ مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے۔ اصل پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقار کو، اپنی شان شوکت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی عطا کو، اپنے غنا کو، جو کچھ تیری عطائیں ہیں جو تو نے دی ہیں مولا، ان سب کو میں نے تیرے حوالے کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے حوالے کیا تو مجھ سے بڑا محافظ کون ہے، مجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے، اور مجھ سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کائنات میں اور ہے ہی کون۔ تو ماں نے کیا کیا، ماں نے وہ چپکے سے جب وہ گئی تو وہ انگوٹھی ہٹائی، اٹھائی، اور گاؤں میں جو گہرے تالاب ہوتے ہیں اس تالاب میں انگوٹھی پھینک دی۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد، وہ تو سوچی سمجھی ترتیب اور سکیم تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے کہا بیٹی وہ انگوٹھی لانا جو میں نے تمہیں دی تھی رکھنے کے لیے، امی ابھی لائی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس برتن میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی وہیں سے آئی۔ اس نے ماں کو لا کے انگوٹھی دی، ماں حیران، اور وہ دیکھے کہ وہی انگوٹھی، میں نے تو اس کو اٹھا کے پانی کے گہرے تالاب میں ڈال دیا، چھوٹی سی انگوٹھی کہاں تالاب میں ملے۔ تو ماں اچانک حیرت سے بولی یہ کہاں سے لائی؟ امی آپ نے دی تھی، میں نے اندر رکھی تھی۔ کیسے رکھی تھی؟ میں نے کہا ہمارے اسلام کے دھرم مذہب میں ہر چیز کے رکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا، اور مجھے اس کے فائدے بتائے، اور جب سے میں نے اس کے فائدے سنے تو میں نے یہ بسم اللہ کر کے وہ کیے تھے تو مجھے مل گئی۔ یہ چوٹ ایسی لگی کہ ماں بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی وہ دھرم دے جس دھرم کے اندر اتنی صداقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے۔ ہمارے اکابر بزرگ اولیاء صلحاء نے ایک عمل دیا ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اور ہمیشہ اس نے اس عمل کو بہت باکمال پایا۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھنی ہے، بس سفید کاغذ ہو،
उस पर 600 पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जेर जबर ना दें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन 625 बार लिखना है। आप लिख के किसी को हदिया कर सकते हैं, लेकिन फोटो कॉपी नहीं। एक शख्स है, अनपढ़ है, नहीं लिख सकता, आप उसको लिख के किसी को दे सकते हैं, वो उसको हदिया कर सकते हैं, लेकिन इसकी फोटो कॉपी नहीं है कि एक बार बंदा लिखे और लाखों लोगों तक या सैकड़ों तक या सारे घर को पहुंचा दे। बहुत बाकमाल अमल है। हाँ, आप उसी 26 की रात को 625 दफा का एक कागज लिखें, फिर 625 दफा दूसरी बार लिख लें किसी और कागज पे, फिर 625 दफा तीसरी बार लिख लें, यह मुमकिन है, लेकिन इसकी कॉपी मुमकिन नहीं है। इसके अनोखे कमालात हैं और इसकी अनोखी तासीर है, इसके अनोखी बरकत हैं और इसका अनोखा निज़ाम है जो आप और मेरी अक्ल और समझ से मावरा है, हमारी समझ से मावरा है। बहुत अनोखा कमाल है। मुहद्दिसीन ने, देखें, एक बात ज़हनशीन रखिएगा, मैं कोई भी अमल बताता हूं और उस अमल की तासीर बताता हूं, कोई भी अमल हो और उसकी तासीर हो, उसको बताता हूं तो उसके साथ मेरे हवाले होते हैं, रेफरेंस होते हैं, और उन हवालों के साथ ही वो अमल मैं बताता हूं। बगैर हवालों के वो अमल मैं नहीं बताता। ये कागज, ये लिखा मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाता हूं। इस अमल के मेरे पास किताबों के हवालों के हवाले हैं। मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। ये बात ज़हनशीन रहे। एक है कि एक बंदा वजीफे बनाता है, खुद साख्ता, अपनी मर्जी से, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया। ये देखिए, इसको 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है बारीक बारीक, फिर उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी, उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया ताकि जरा कागज खस्ता ना हो जाए पुराना। और ये जिंदगी में एक दफा करना है, कोई हर साल नहीं लिखना। हाँ, हर साल लिखें, हर साल लिखें, दूसरों को हदिया कर दें, उसको समझा के हदिया करें कि भाई इसके ये फायदे हैं, इसकी ये तासीर है और इसका ये कमाल है, उसको हदिया कर दें, लेकिन बता के, बिन बताए नहीं। उस बेचारे को क्या पता इसके क्या फायदे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अमल मैं देता हूं, उसकी कुरान से सनद, उसकी हदीस से सनद, औलिया, सोलहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद हैं, और वो असनाद जो हैं वो मौजूद हैं कि जो कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर आपने इसकी सनद देखनी है तो हमारा एक पेज है, अकाबिर पर एतमाद, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंग्लिश में लिखेंगे अकाबिर पर एतमाद, फौरन एक पेज खुलेगा। मेरे हर वजीफे का हवाला, मेरे हर वजीफे की सनद, मेरे हर वजीफे का रेफरेंस, और उस हर वजीफे की ताकत कि मैंने, सिर्फ ये मैंने नहीं, इससे सदियों पहले बड़ी बड़ी हस्तियां इस वजीफे को बताती चली आ रही हैं। इस तरह इस वजीफे की भी सनद है, रेफरेंस हैं, हवाले हैं कि जिसके पास ये वजीफा होगा, यानी 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होगा, उसको क्या मिलेगा। और जितनी बार लिख लें, है बड़ा कमाल, पुरतासीर अमल। हादसों से, बीमारियों से, जादू जिन्नात के हमलों से, दुश्मन के शर से, और जिसकी जेब में ये होगा, हर कदम पे कामयाबी, हर कदम पे कामरानी, हर कदम पे कमाल, हर कदम पे इज्जत, हर कदम पे राहत, हर कदम पे शान और शौकत। अल्लाह के नाम में ताकत है। असल में इस कागज में आपने जो लिखा है ना, अल्लाह पाक जल्ल शानहू के 3 नाम तो वासे लिखे हैं। एक अल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह, दूसरा रहमान और तीसरा रहीम। और ये जो बे है ना, बे, बिस्मिल्लाह की बा जिसे कहते हैं, बे, बा, ये बा और बे जो है, इसकी अपनी एक ताकत है। देखिए, सारा कुरान हुरूफ तहज्जी से मिलके बना है, अलिफ बा से मिलके बना है ना, सारा कुरान हुरूफ तहज्जी से मिलके बना है। और बास वक़्त में एक बात सोचता हूं, हमारी उर्दू की लिखाई कुरान की लिखाई से मिलती है, हिंदी नहीं मिलती, इंग्लिश नहीं मिलती, और उसके अलावा जापानी नहीं मिलती, चीनी नहीं मिलती, फला नहीं मिलती, गुजराती नहीं मिलती, कुरान की लिखाई से नहीं मिलती। रस्मुल खत उर्दू कुरान की लिखाई से मिलती है। ये नेमत है। क्यों? कब्र की जुबान कुरान अरबी होगी, कब्र में हर बंदा अरबी बोलेगा, जो सवाल और जवाब होंगे अल्लाह निज़ाम सारा चलाएगा, खुद अरबी आना शुरू हो जाएगी। मुनकर नकीर के सवाल और जवाब अरबी में, जन्नत की जुबान अरबी,
कमली वाली की ज़ुबान अरबी, जिब्रील की ज़ुबान अरबी और अल्लाह की ज़ुबान अरबी, कुरान अरबी में। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो ये नक्श है और पुरतासीर और ताकतवर नेमत है और तोहफा है, ये एक नसीब और मुकद्दर वाला होता है जो इसको लिखता है और इसकी कदरदानी करता है और फिर इसको चूमता है और फिर इसको अपने साथ किसी पर्स में, अपने किसी वॉलेट में या ऐसी कोई थैली में कहीं भी आप रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज है, इस पर्स में ना रखिएगा जो पर्स पैंट की बैक पे होता है, उसमें ना रखिएगा, उसमें बेअदबी का इस्तेमाल है। आप कोट पहनते हैं, आप 3 पीस पहनते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप कोट में रखें, आप शर्ट में रखें, लेकिन पैंट की पीछे बैक पे बाज़ औक़ात वॉलेट होता है, पर्स होता है, उसमें अदब का मामला होता है और बहुत ज़्यादा अदब होता है। आपको अदब को एक छोटी सी बात बताऊं कि एक साहब हल चला रहे थे और हल चलाते चलाते उन्होंने किबले की तरफ थूका और बेख्याली में थूका, इंसान को बेख्याली में। हम भी अगर किसी को किबले की तरफ बेख्याली में थूकता देखें तो उस पर एतराज़ ना करें कि पता नहीं वो बेख्याली में थूक रहा। एकदम ख्याल आया, अपने आप को कहने लगा, तुझे मैंने कई दफ़ा कहा था कि तू किबले की तरफ ना थूका कर, तो फिर थूक लिया तूने, अब तुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अपने आप को कहने लगे तुझे सज़ा मिलनी चाहिए, इस थूक को अपने मुंह से उठा, अपनी थूक को खुद उठा अपने मुंह से, और मुंह से उठा के इस थूक को तू जो है अब फेंक। अब मुंह करीब जब ले गया तो अदब का आलम यह है कि अल्लाह ने उस थूक को लाल मोती और हीरा बना दिया। अब इसका अंदाज एकदम बदला और अंदर जज्बा बदला और शैतान और नफ्स ने वसवसा डाला, एक थूक ऐसी और डाल ले, मुंह से उठा ले, एक हीरा और बन जाएगा। पहले अनजाने की थी, पहले नादानिस्तगी की थी, अब जाने की है। अनजाने का तो गुनाह रब माफ करता है। अब इसने जाने में फिर थूक फेंका और मुंह करीब ले गया और वो बिच्छू बना और उसने जुबान पे डसा और वहीं मर गया। अदब, मैं इस अमल का अदब बता रहा हूं हमारी मोतबर किताबों में, मुस्तनद किताबों में, इसलिए मैंने अकाबिर पर एतमाद का जो हवाला दिया है, इस 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बाकायदा किताबों के हवाले दिए हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों की हज़रत काश्मीरी का हवाला है और मैं कोई हवाले, इस वक्त थोड़ा है, हवाले बयान नहीं करूंगा। अगर ये हवाले देखने हैं तो उस पर देखें। रिस्क के लिए, वसत के लिए, बरकत के लिए, नस्लों में रिस्क की कमी ना हो, अल्लाह हर जगह हिफाजत फरमाए, डाके से, छीना झपटी से, हादसों से, एक्सीडेंट से और दुश्मन के किसी वार से, दुश्मन के किसी शर से और दुश्मन के किसी शरारत से और किसी हमले से। ये अनोखा निज़ाम है, अनोखा निज़ाम है, जहां इंसानी अक्ल, जहां इंसानी शऊर और जहां इंसानी एहसास खत्म हो जाता है, वहां 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर अपने पास रखने से जो मिलता है वो ताकतें, फिर वो कुव्वतें, वो कमालात फिर वहां से शुरू होते हैं जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है। मैं साल साल से बता रहा हूं और साल साल से अल्लाह की मखलूक इसको कर रही है और जिसने भी यकीन से किया, बात यकीन की है। मैंने अपने शेख से पूछा, मुर्शिद से पूछा, हज़रत मुझे कोई इसमें आज़म बताएं, तो मेरे मुर्शिद ने जो जवाब दिया वो आज मैं आपको बताता हूँ। वो मेरी सांस की आखिरी लड़ी तक वो जवाब याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। आखिरी हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। वो आखिरी हिचकी तक उन्होंने फरमाया, तारिक, इसमें आज़म असल में यकीन आज़म है। जिसको यकीन आज़म है ना, यकीन, अंधा यकीन है, वही इसमें आज़म है। और इसके अंदर शक, वसवसे, होगा नहीं होगा, क्या है, कैसे है, कहाँ से लिया, क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं होगा। बिन देखे यकीन किया था हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने, दुनिया में उनका नाम इज्जत बन गया। और देख के कुरैश मक्का ने यकीन नहीं किया था, दुनिया में उनके नाम जिल्लतों का जरिया बन गए। असल तो यकीन है। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बैठे मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए, जैसे बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, और कह रहे ले जाओ जन्नत का घर 500 दिरहम में, ले जाओ जन्नत का घर। लोग हंस रहे कि ज़हनी तौर पे माजूर है, बेचारा पागल है, ये क्या जन्नत का घर। हारून रशीद भी जा रहे हैं और जुबैदा भी जा रही है ऐसे। तो हारून भी हंस पड़ा
जुबैदा कहने लगी फ़कीर है, कलंदर चे गोयत हक गोयत, फ़कीर के बात से जो निकलती है अकल माने ना माने, समझ आए ना आए, जहन एहसास इदराक ज़माना तस्दीक करे ना करे, पर फ़कीर की बात सच्ची। ले अंधे के सौदे करते हैं, बाबा जी ये लो 500 दिरहम। उन्होंने कहा जा बेटी तेरा जन्नत में महल हो गया। हंस पड़े। उसने कहा अच्छा हारून, शोहर से कहने लगे ना हुआ तो 500 दिरहम हमारे लिए क्या है, लेकिन असल सौदा 500 दिरहम का नहीं हुआ था, यकीन का हुआ था, और बिन देखे यकीन का। रात को हारून रशीद ने ख्वाब देखा, और अनोखा ख्वाब देखा। एक घर है, उस पर लिखा हुआ है बैत जुबैदा, महल है, जुबैदा का महल। अंदर जाने लगा तो फरिश्तों ने रोक दिया। कहाँ? उसने कहा बीवी है। उसने कहा दुनिया में है, यहाँ तो ऐसा ले आओ फिर जा सकोगे। रात को आंख खुली, परेशान हो गया, रोने लगा। जुबैदा तूने अनदेखे सौदे कर लिए, मैं तो मारूम रह गया, पीछे रह गया, बहुत परेशान। सुबह फिर निकले तो वही दुर्वेश है, दीवाना मजजूब है, और कह रहा है ले लो जन्नत का महल। और हारून ने बढ़ के कहा ये 500 दिरहम। हारून को कहने लगा हारून अनदेखे सौदे होते हैं, देखे नहीं होते, तूने रात देख लिया था। अब अपनी ममलिकत क्या, हुकूमत क्या, ये सारी बादशाहत क्या, ऐसी कई बादशाहतें दे दे तो सौदा ना हो। जाओ बस, वो घड़ी गई, वो वक्त गया, वो लम्हा गया, पाने वाले पा गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अमल जो बता रहा हूं, ये बड़े बड़े अकाबिर से, बड़े बड़े मुहद्दिसीन से ये साबित है। मैं वज़ाइफ बनाता नहीं हूं, बताता हूं, डाकिया हूं। जो बंदा 625 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पे लिखेगा और 26 की रात को अपने पास रखेगा, जैसे मैंने ये दिखाया कि इस तरह लेमिनेशन भी करा सकता है। और मेरा एक मशवरा है, इस कागज पे कोई इत्र वगैरह खुशबू, परफ्यूम नहीं, इत्र खुशबू लगा ले, ना भी हो तो ऐसे लेमिनेशन करा दे। ये अमल अगर आप करें बहुत है। जिसको मैंने दिया, किसी की मुश्किलें टली, किसी की परेशानियां दूर हुई, किसी के मुकद्दमात, किसी की बे औलादी में बहुत ज्यादा, शादियों की बंदिश में बहुत ज्यादा, और जिंदगी की नाकामियों में बहुत ज्यादा मैंने इसको मुफीद पाया और इसको मौसर पाया, बहुत मुफीद और बहुत मौसर पाया। जो शख्स कहता है मेरी जिंदगी में नाकामी है, या काम बनते बनते अटक जाते हैं, मंजिल के करीब पहुंच के दूर हो जाता हूं, मेरे पास लाखों से ज्यादा लोगों का एक मजमा है, और नेट पे, पूरे वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में मैं कोई अमल बताता हूं ना, तो उसका मुझे एक पल में ऐसे आउटपुट मिलती है, उसका रिजल्ट मिलता है, उसका तजर्बा मिलता है। लोग अपने बेशुमार मुशाहिदात और बेशुमार तजर्बात बताते हैं, और ऐसे तजर्बात होते हैं, और बास तजर्बात तो मैं लोगों से सीखता हूं, आज भी लोगों से सीखने वाला हूं, सीखता हूं कि जी मैंने ये तजर्बा किया और ये पाया, ये पाया, ये अच्छा ये फायदा भी होता है, ये भी होता है, वाकई ये तो मेरे तजर्बे, मेरे मुशाहिदे में नहीं था, और मेरे जो है मालूमात में नहीं था, अच्छा ये भी होता है। तो बहुत कुछ लोगों से पाता हूं और लोग मुझे देते हैं। और 625 बार बिस्मिल्लाह लिखने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग जाता है, और कितना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी में आधा घंटा लगा ले और अपनी जिंदगी के पल पल को संवार ले, और अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को संवार ले। एक है कि अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, रोज का मांगना, रोज का भीख मांगना, या रोज की आज है आज नहीं। एक ये है कोई ऐसा अमल कर जाएं अपने लिए भी खुशहाली के, अपने लिए भी खुशहाली के, और नस्लों के लिए भी खुशहाली के दरवाजे खुलवा दें। पर एक बात याद रखिएगा, मैं लाहौर में जहां रहता हूं, लाहौर का मेन है, वो बहुत मरकजी जगह है, लाहौर की जेल रोड, और वहां 6 सड़कें लगती हैं। लाहौर की मेन सड़क, यानी ये जेल रोड है, ये फिरोजपुर रोड है, ये बहावलपुर रोड है। वहां नवाब बहावलपुर का महल होता था, अब उसको बहावलपुर हाउस कहते हैं। गवर्नमेंट के बड़े बड़े घर हैं वहां, चंद प्राइवेट घर हैं, वहां मेरा भी घर वहीं है। वहां बहावलपुर हाउस है, ये टेम्पल रोड है, ये लिटन रोड है, ये क्वींस रोड है। 6 रोडों का संगम है शहर की मरकजी। वहां एक प्लाजा है जो आज उस मालिक का नहीं है, उस मालिक का नहीं है। और वो मालिक तेरी मेरी दुकान पे जाता है, दोस्तों के पास, कोई 100, कोई 200, कोई 50, कोई क्या दे देता है, बस चुप करके मुट्ठी में डाल देता है, और घर में आके गुजारा करता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, जमीन आसमान का निजाम बदलता है। वह तो इस्सु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा, वो इज्जतें और जिल्लतें उसके हाथ में हैं, पल में क्या कर दे, पल में क्या हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, जो अमाल की बरकत पाता है, कलामी इलाही की बरकत पाता है, वही की बरकत पाता है, वही की, और तासीर पाता है। अल्लाह उसकी नस्लों को भी तवंगरी मालदारी देते हैं, और अल्लाह उसकी नस्लों को भी बिठा के खिलाते हैं, पिलाते हैं। बड़ी बड़ी दरबारों के गद्दी नशीन हमारे सामने हैं, आज तक उन्होंने कोई कारोबार, कोई मजदूरी नहीं की। बड़ी बड़ी आस्थानों के मुजावर और गद्दी नशीन हमारे सामने हैं, उनके बड़े ये बरकत वाले अमाल करके गए थे, उनके बड़े ये बरकतों वाले
راتوں کو محنت کر کے گئے تھے، آج نسلیں بیٹھی کھا رہی ہیں، آج نسلیں مالا مال ہیں، اور آج نسلوں کو تونگری ہے، نسلوں کو خیر ہے، نسلوں کو برکت اللہ دے رہا ہے، اور ان گدی نشینوں کی نسلوں کو ملے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، وہ اس مال کو خیر کی راہوں میں لگائیں یا شر میں لگائیں، اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ اور اگلی بات، خواتین ہر حالت میں لکھ سکتی ہیں، خواتین کی بعض مجبوری کے ایام ہیں تو اس حالت میں بھی اس کو لکھ سکتی ہیں، لکھیں، اس کو ضرور اپنا ساتھی بنائیں۔ اس کے فائدے میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے پاس بہت واقعات ہیں، بہت مشاہدات ہیں، بہت تجربات ہیں، میرے پاس واقعات در واقعات ہیں، وقت نہیں واقعات بتانے کا۔ آپ اگر تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، کچھ میرا درس سنتے ہیں تو آپ کو خود علم ہوگا کہ آپ کے کوئی ملنے والوں نے اس کے واقعے بتائے ہوں گے، کوئی ملنے والوں نے اس کے تجربات بتائے ہوں گے، اس کے مشاہدات بتائے ہوں گے، اور اس کی انوکھی تاثیر بتائی ہوگی، اور آپ کو خود علم ہوگا۔ میری عادت ہے، جو کوئی موتی مجھے ملتا ہے میں چاہتا ہوں انسانیت تک پھیلاؤں، چھپا کے نہ رکھوں، کیونکہ میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں، لوگوں سے وظیفے لینے میں، چیزیں لینے میں بڑے دھکے کھائے ہیں۔ میں نہیں چاہتا جو مجھے ٹھوکریں لگی ہیں وہ کسی اور کو لگے، اور میں نہیں چاہتا میرے کفن میں لوگوں کی امانتیں قبر میں میرے ساتھ جائیں، یہ امانتیں آپ تک لوٹا دوں۔ ورنہ جس کے پاس کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی دم، کوئی چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں ساتھ ایک بستی ہے تو اس میں شیخ روشن، تو اس میں ایک صاحب ہیں دم کرتے ہیں، آج تک یا اس بابے کا دم نکل جائے گا یا میرا نکل جائے گا، اس نے مجھے دم نہیں دیا، زخموں کا دم کرتا ہے، میں کئی بار گیا ہوں، آج دوں گا کل دوں گا، اور مجھے جو چیز ملتی ہے وہ انسانیت کے لیے عام کر دیتا ہوں، انسانیت کے لیے عام کر دیتا ہوں۔ ایک مالی ہے، نیک شریف آدمی ہے، میرے والد صاحب کے تعلق والے ہیں، ان کے باغوں میں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے باغوں میں وہ خدمت کرتے تھے، پودے وغیرہ پیوند کرتے، بہت کاریگر آدمی ہیں، وہ ایک دم کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور صاحب ہیں، ہری پور کے قریب رہتے ہیں، وہ ایک چیز ہے ان سے، حالانکہ میں نے انہیں بے شمار چیزیں دیں کہ مجھے یہ چیز دے دیں، انہوں نے واضح کہا، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا، آپ یا رسالے میں چھاپ دیں گے یا درس میں بتا دیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہوگا تو کچھ نہیں۔ میں نے کہا لوگوں کو فائدہ ہی تو ہوگا۔ کہنے لگا اچھا فائدہ تو ہوگا، اچھا پھر بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اس کے جواب نہیں ہے، پھر کب بتائیں گا؟ کتنے محنتوں کے بعد یہ 625 دفعہ کا عمل آپ تک پہنچا ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اس کی قدر کیجئے گا، اس کو سینے سے سنبھالیے گا، اور پھر جب لکھ لیں پھر اس کے لکھتے ہی یقین ہو، جیسے 100 کا نوٹ ہو اور روپے کی اگر ماچس کی ڈبی آتی ہو تو ہمیں ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ یقین کے ساتھ جا رہے، 1 روپے کی ماچس کی ڈبی آتی ہے، ہمارے پاس تو 100 روپے کا نوٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ جس بندے کے پاس دولت ہو اور کوئی چیز خریدنی جاتی ہو، جیب میں لاکھ روپے ہو اور وہ چیز جو ہے 1000 روپے کی آتی ہو، وہ کس بھروسے سے دکان پہ چڑھے گا، کس بھروسے سے ڈیل کرے گا، کس بھروسے سے بات کرے گا؟ ہاں ایک اندر کیفیت ہوتی ہے، میری جیب بھری ہوئی ہے، 1000 روپے کی ہے، کوئی بات نہیں، دے دو، یہ لو۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ میرے پاس 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا، یقین، اور اس یقین کے اندر طاقت ہے، اور اس یقین میں قوت ہے، اور اس یقین میں تاثیر ہے، اور یہ یقین پھر سوئے نصیبوں کو جگا دیتا ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، 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 نستغفرک ونتوب، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا